Jai Hind to everyone. Myself, Dr. Rahul Kumar Pandey, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College in Mathematics Department. It's my fifth lecture. Today's topic is statistical quality control, control charts, and specific content is mean chart and range chart. Okay. Now, what is statistical control? Firstly, we define statistical SQC, in short form SQC. A quality control system performs inspection, testing, and analysis to ensure that the quality of the products produced is as per laid down quality standard. It is called statistical quality control. ओके, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, कोई भी सामान हमारा जब प्रोड्यूस होता है तो बेसिक उसके कुछ मापदंड होते हैं, पैमाने होते हैं, उसको चेक करने के लिए एज ए क्वालिटी स्टैंडर्ड. SQC consists of three general activities. Main three general activity होती हैं: systematic collection and graphic recording of accurate data, analyzing the data, and practical engineering or management acting if the information obtained indicates significant deviation from the specified the limit. These are three main systems for SQC. एडवांटेज ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्या एडवांटेज है इनके करने के लिए? एफिशिएंसी, द यूज ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर रैपिड एंड एफिशिएंट इन्फेक्शन ऑफ मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट आपकी अच्छी हो जाएगी, जो मिनिमम कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा आपका. रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, इट uncovers the causes of the excessive variability in a manufactured products, forecasting trouble before rejection occurs and reducing the amount of spoiled work. यदि आपने कोई खराब चीज ऑप्ट कर ली, उसके बाद नुकसान हुआ, तो सबको बचाने के लिए ये आपका काम आएगा SQC. Easy detection in statistical quality control after plotting the control charts when the points up fall above the upper control limit or below the lower control limit, it gives indication of the deterioration in a quality control. Necessary corrective action may be taken these immediately. बेसिकली जब हम इस चीज को करते हैं तो 3 लिमिट्स होती हैं: अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट. इन 3 लिमिट्स के बीच में आपका यदि आपका कोई भी डेटा सही है तब हम उसके स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, अदरवाइज नहीं है. तो हमें चेक करना पड़ेगा किस तरह हम ये काम करेंगे. टेक्निक्स फॉर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल. मेन टेक्निक्स: प्रोसेस कंट्रोल. इट इज ए प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द वेरिएबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑफ a machine through the interpretation of statistical techniques, and it is employed to or manage in process quality. These techniques ensure the production of the requisite standard product and make use of control chart. प्रोसेस कंट्रोल होता है कि आप कोई भी चीज आप मॉनिटर कर रहे हो, उसकी वेरिएबिलिटी चेक कर रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो, वो टेक्निक होती है हमारी. प्रोडक्ट कंट्रोल. दिस टेक्निक इज concerned with the inspection of the already produced good to ascertain whether they are fit to be dispatched or not. To achieve the objective, it make use of sampling inspection plan. सैम्पलिंग के हिसाब से हम काम करते हैं. डेटा पहले हम देखते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम अपने स्टैंडर्ड मानक पे तय करते हैं कि हमारा वो स्टैंडर्ड लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो प्रोडक्ट आपका कैसा है, बिलो स्टैंडर्ड है, अपर स्टैंडर्ड है, ये सब चीजें हम सैम्पलिंग से भी चेक कर सकते हैं. Control chart. Control chart have defined by categories by 2 types: control chart for variables and control chart for attributes. Here my topic is control chart for variable, and they are useful to measure quality characteristic and to control fully automatic process. It includes mean chart and range chart. जहाँ पर पॉसिबल है कि हम किसी भी डेटा का मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये फंडामेंटल जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो हम फाइंड आउट कर सकें, वहां पर हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स लगाते हैं. इट इजी टू कैलकुलेट, दैट्स व्हाई वी यूज कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल. और जहां ये सब मुश्किल हो वहां पर हम कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स,
It includes P chart for fraction defective. A fraction defective control chart disclose erratic fluctuation in the quality of instruction, which may result in improved inspection of the practice and instruction standards. Also, NP chart a number of defective and C chart a number of defects per unit. Sir, it's basically three types: P chart, NP chart, and C chart. P chart means fraction defective. फ्रैक्शन डिफेक्टिव को जहां पर हमारा मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो तो हम वहां फ्रैक्शन पे जाते हैं कि अब कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आपका पी चार्ट से कैलकुलेट होता है। एंड इफ लार्ज स्केल पर फ्रैक्शन हो तो एनपी चार्ट, नंबर ऑफ लार्ज स्केल। एंड फ्रैक्शन पर डिफेक्ट, एक यूनिट टाइम पे लेंगे फ्रैक्शन पर डिफेक्ट तो हम सी चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, बेसिकली इट्स अकर्ड बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पी चार्ट एंड एनपी चार्ट अकर्ड बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी चार्ट अकर्ड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, हियर माय टॉपिक इज मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट। तो what will be mean chart? Here we have decided for any data, we have decided for 3 lines. 3 lines means control limits, upper limit and CL control limit, LCL lower control limit, UCL upper control limit। डेटा हमारा इनके बीच होना चाहिए, जो भी हम आपका ग्राफ बने इनके बीच बने, हमारा स्टैंडर्ड तभी आपका मेंटेन होगा। एंड फॉर्मूला फॉर सेंट्रल लाइन, व्हेन द टॉलरेंस लिमिट आर नॉट गिवन, व्हेन द टॉलरेंस लिमिट्स आर गिवन, इफ टॉलरेंस लिमिट्स आर नॉट गिवन देन x and tolerance limits are given then mu, where mu what is mu? Lower limit plus upper limit by 2, arithmetic means of lower limit and upper limit, upper control limit, ठीक है। एंड बाय फॉर्मूला LCL इज x डबल बार एवरेज ऑफ एवरेज, कई मीन सैंपल्स होते हैं उनका हम एवरेज देते हैं तो उसके सबका कंबाइंड एवरेज x डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार, वेयर आर बार इज रेंज चार्ट, मीन ऑफ रेंज। ओके, एंड A2 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए गिवन टेबल, वो डिस्कस करेंगे हम। एंड UCL इज x डबल बार प्लस A2 आर बार। A2 अभी डिस्कस कर रहा हूं कि A2 क्या होगा। A2 डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज एंड कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये आपको गिवन होगी, ये कैलकुलेट करके आई A2। सैंपल साइज आपके दिए होंगे n इक्वल टू 2 3 4, 1 तो होगा नहीं सैंपल, क्योंकि एक सैंपल से क्या होगा, सैंपल मिनिमम आपकी 2 होनी चाहिए तभी तो हम कलेक्ट करेंगे कोई डाटा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सैंपल्स आपके हैं। 20 सैंपल पे A2 साइज अलग अलग डिफाइन किया गया है, 2 पे 1.88, 3 पे 1.02, 4 पे 0.73। दीज आर फिक्स्ड डेटा, these are fixed data and given by students। okay, here range chart, firstly we understood mean chart is LCL, UCL and CL, and in range chart central line means R bar, रेंज आपको जो दी होगी उसका आपका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही आपका रेंज चार्ट होता है R bar। एंड LCL is D3 R bar and UCL is D4 R bar। D3 and D4 also depends on sample size and calculated from another table। D3 D4 के लिए भी हमें एक टेबल दी जाएगी आपको, वो सैंपल साइज पे डिसाइड होगी। सैंपल साइज डिटो सेम, n इक्वल टू 2 स्टार्टिंग 2 से होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 3 4 5 6 तक आपका D3 0 है। सारे सैंपल्स में से n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू c, D3 is 0 and D4 is 2.27, 2.57, 2.28, 2.11। These are calculated and fixed value। ओके, ये सब कैलकुलेट होके आए हैं, इसमें हमें कोई इफ एंड बट नहीं करना, ये आपको टेबल मिलेगी उससे हम काम कर लेंगे, ठीक है। एंड हियर D2 इज डिफरेंस ऑफ D3 एंड D4 और यहाँ इज नॉट नेसेसरी फॉर आवर डाटा। ओके, this is D3, this is D4, then that's why we calculate LCL and UCL for range chart and CL is average of range chart। okay, before starting
फर्स्टली एक बार और समझ ले हम कैसे हम निकालते हैं एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट आपका मीन चार्ट होता है। मीन चार्ट के लिए आपको दो प्रकार का होगा, या तो आपको लिमिट्स दी होंगी या लिमिट्स नहीं दी होंगी। लिमिट्स दी होंगी तो आपको म्यू दिया होगा आपको, और नहीं दिया होगा डेटा दिया होगा, उसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड एवरेज, दैट्स वाई एन एलसीएल एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, यूसीएल एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार। नाउ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। द फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम 10 सैंपल ईच ऑफ साइज 5। ठीक है, फर्स्टली अंडरस्टैंड वन बाय वन, लाइन वन बाय वन, कि आपको क्या दिया है, 10 सैंपल दिए हैं जिसका साइज 5, यानी हर एक सैंपल में 5 आइटम्स होंगे। ओके, 10 सैंपल्स है एंड ईच ऑफ साइज इज 5। The specification limits of lengths are 200 plus minus 5 centimeter. Okay. Construct X bar and R chart and examine whether the process is under control or not and state your recommendation. अब आपको उन्होंने एक डेटा दे दिया है और डेटा से आपसे वो फाइंड आउट करा रहा है कि आप रेंज चार्ट और मीन चार्ट फाइंड आउट करो और देखो कि आपकी जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं। वो आपको और अपना एक रिकमेंडेशन दो कि ये आप करने लायक हो कि नहीं। ओके, एंड व्हाट इज डेटा, सैंपल 1 to 10, मीन हर एक सैंपल के लिए मीन, 1 के लिए 201, 2 के लिए 198, फॉर 3 202, 4 200, 5 203, 6 204, 7 199, 8 196, 9 1199 and 10 201 and range correspondence sample number 1 5 2 0 3 7 4 3 5 3 6 7 7 2 8 8 9 5 10 6. Okay, and assume for n equal to 5 a2 equal to 0.58, d4 2.11, d3 इक्वल टू 0। यदि आपको इन्होंने ये डेटा दे दिया फिर आपको टेबल की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप टेबल चेक भी कर सकते हो। फॉर n इक्वल टू 5 a2 0.58, जस्ट चेक a2 n इक्वल टू 5, जस्ट चेक करो आप लोग। जरा a2 आप चेक करो, n इक्वल टू 5 के लिए 0.58 है कि नहीं है, वो ये दिया आपको, ये 0.58। d4 फॉर n इक्वल टू 5 2.11, जस्ट चेक इट। d4 फॉर n इक्वल टू 5 2. ये दे 11 है कि नहीं, और d3 फॉर n इक्वल टू 5 0, जस्ट चेक इट, d3 0। ओके, आप यहां टेबल से देख सकते हो, वो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो वी हैव टू ऑल वैल्यूज आर गिवन। नाउ फोकस ऑन आवर प्रॉब्लम्स। कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट, मीन चार्ट, कंट्रोल लिमिट, वहां एक उन्होंने वैल्यू दी थी 200, और क्या था 200 प्लस माइनस 5, 200 प्लस माइनस 5 मीन्स म्यू प्लस a2 आर बार, ये आपको पूरी वैल्यू दे दी थी, तो हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले जरा एक काम करें, हम जो हमारी रेंज दी है उसका आर बार तो निकाल लें, क्योंकि आपके फॉर्मूले में है हमारा आर बार। तो रेंज आपकी क्या थी, 5073372856 आर बार। आप लोग फॉर्मूले चेक कर लो, ये देखो फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी हमें आर बार की, ये है आर बार। तो आर बार हम फर्स्टली वी विल फाइंड आर बार, ये आर बार टोटल 46 डिवाइड बाई 10 4.6। ओके, फॉर्मूला यूसीएल एंड एलसीएल फॉर मीन चार्ट, मीन चार्ट। ठीक है, तो यूसीएल 200 प्लस A2 कितना था हमारा 0.58, अभी चेक किया था,
आर बार 4.06, तो यूसीएल आ गया 202.668 एंड एलसीएल इज 200, सेम, बस प्लस माइनस की डिफरेंस होता है, माइनस 0.58 इंटू 4.6 एंड 197.332। ओके, ये आपके बाउंड्रीज आ गई फॉर यूसीएल, एलसीएल एंड सीएल। सीएल ये आपका मीन म्यू होता है, तो सीएल आ गया आपका 200। ओके, यूसीएल आ गया 202.68 and LCL is 197.332। ओके, तो ये फॉर मीन चार्ट, एक्स बार चार्ट के लिए आ गया। अब कंट्रोल लिमिट्स फॉर रेंज चार्ट, सीएल आर बार अभी भी निकाला हमने 4.6, यूसीएल फॉर्मूला D4 आर बार, D4 आर बार, D4 है 2.11 इंटू 4.6 9.706 एंड LCL D3 आर बार, D3 इज 0 मींस LCL इज 0। तो फॉर रेंज चार्ट CL 4.6, UCL 9.706, LCL 0, these data for रेंज चार्ट। ओके, तो हमने सारी लिमिट्स निकाल ली है। अब आपने जो डेटा दिया उसको फिट करना है इन लिमिट्स में। जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फॉर रेंज चार्ट एंड मीन चार्ट। फर्स्टली वी ड्रॉ द ग्राफ मीन चार्ट। जस्ट लुक एट द टेबल सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 1 to 10 सैंपल हम ड्रॉ कर लेंगे। जब हम मीन चार्ट के लिए बात कर रहे हैं, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बाउंड्री सेटअप करनी पड़ती है हमें, ये कहां से कहां तक डेटा हमारा वेरी कर रहा है। मिनिमम हमारी वैल्यूज क्या है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यूज हमारी अकॉर्डिंग टू माय व्यू 196, हाँ 196 एंड अपर वैल्यू 204, तो 196 to 204। जस्ट फोकस ऑन अ ग्राफ, 5 पे डिफरेंस ले लेते हैं हम, 190 195 200 205। ओके, एंड सैंपल नंबर इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जब हम सैंपल नंबर 1 के लिए जरा देखो आप कहां पर जा रहा है आपका सैंपल नंबर 1 201 है, सैंपल नंबर 2 198 है, 201 202, ये देखो 202, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और सैंपल नंबर 2 के लिए 198, ये है 198, और ऐसे सैंपल नंबर 3 के लिए वैल्यू दी होगी आपको, जस्ट चेक इट। सैंपल नंबर 3 के लिए 202, सैंपल नंबर 4 के लिए 200, सैंपल नंबर 3 के लिए 202, सैंपल नंबर 4 के लिए 200, ठीक है। एंड सैंपल नंबर 5 203, यूसीएल है आपका 202, सीएल है 200, एलसीएल है 197। इन बाउंड्रीज के बीच में ही आपका सारा डेटा होना चाहिए, यदि नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और आपको एक पॉइंट दिख भी रहा है, कौन सा पॉइंट है, 4 5 6, जरा चेक करते हैं हम। 4 में 200, ठीक है। 5 में 203 जस्ट अबव ऑफ यूसीएल, यूसीएल इज 202 एंड 203 इज अपर पॉइंट, दिस, यानी ये पॉइंट बाहर है हमारा बाउंड्री से। और 6 आल्सो 204, जब 203 बाहर है 204 भी बाहर है, 2 पॉइंट हो गए। 6 204 7 199 8 196 और यहां 197 है, 8 ये, तो 3 पॉइंट्स आर आउटसाइड अब 3 लिमिट्स यूसीएल एलसीएल। दैट्स मीन एक्स बार चार्ट हैज नॉट अंडर कंट्रोल।
Why? Because sample number 5, 6, 8 lies outside the control limits. Therefore, the process is not statical control for mean chart. Just focus on range chart. रेंज चार्ट में जब हम चेक करते हैं, रेंज चार्ट के सैंपल है 1 2 10 5 0 7 3 3 7 2 8 5 6। रेंज चार्ट की बाउंड्री पहले हम फाइंड कर लेते हैं। यूसीएल 9 है, यूसीएल 9 है, सीएल 4.6, एलसीएल 0, मीन 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9.7। और आप देखो सारी वैल्यू 9 से छोटी है, 5 0 7 3 3 7 2 8 5 6। तो अकॉर्डिंग टू रेंज चार्ट ऑल वैल्यूज लाइज इन यूसीएल एंड एलसीएल। रेंज चार्ट के लिए तो आपकी प्रोसेस कंट्रोल है, बट मीन चार्ट के लिए प्रोसेस कंट्रोल नहीं है। दैट्स वाई हम पूरे में देखते हैं कि पूरा आपका पैकेज क्या है, पूरे पैकेज के हिसाब से ये हमारी प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है, बिकॉज 3 पॉइंट साइज आर लाइज आउटसाइड इन द बाउंड्रीज। 5 6 and lies outside the control limits. Therefore, process is not in statical control. The process should be halted and it is recommended to check for any assignable causes. कह रहे हैं ये प्रोसेस आप रोक दो, आगे के लिए उसको डाल दो, इसको देखो कहां कहां प्रॉब्लम है। ओके, एंड फ्लक्चुएशन विल रिमेन अंटिल दीज कॉसेज इफ फंड्स आर फाउंड आर रिमूव्ड। आप देखो प्रोसेस दूर हो जाए फिर आप इसे शामिल करो। इस तरह हम अपने मीन रेंज चार्ट से अपना जो भी डेटा है उसे चेक करते हैं कि प्रोसेस हमारी कंट्रोल में है कि नहीं, और कंट्रोल में नहीं हुई फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं और प्रोसेस अपनी रोक देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर चेकिंग स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ओके, जय हिंद टू एवरीवन।